اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ابھی لاسٹ ہم نے لیجسلیٹو برانچ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دی ایگزیکٹو برانچ اینڈ جوڈیشل برانچ، اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیا ہے. جو اسٹوڈینٹس ریپیٹڈلی ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں آؤٹ لائن ملنی چاہیے، تو میرے خیال میں جو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں اور لیکچر جو ہیں اٹینٹیو ہو کے لے رہے ہیں لیکچر، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے اور کیا ابھی رہتا ہے. تو ہم نے دی ایگزیکٹو برانچ، جوڈیشل برانچ اینڈ لیجسلیٹو برانچ ان ڈیٹیل ڈسکس کر لیا ہے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم نے اچھی طرح پڑھا ہے، اور جوڈیشل ریویو اور اس کے اندر جو کیسز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی اچھے طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں ان کلاسز بیفور لاک ڈاؤن اینڈ آفٹر لاک ڈاؤن ان آور آن لائن کلاسز. تو ابھی ہم شروع کریں گے. تو اگر آپ کا کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ نا ساتھ ساتھ ہی جو پوچھ سکتے ہیں ڈیورنگ کلاس. تو اب یہ جو لاسٹ پہ 5 منٹس دیے جاتے ہیں، وہ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کویسچن بھول جاتا ہے ان کا. تو آپ کا اگر کوئی کویسچن ہوگا تو آپ نے یہ جو اس پہ ہینڈ ریز کی آپشن ہے، وہاں پہ ہینڈ ریز کر کے اور ان میوٹ کر کے آپ نے کویسچن پوچھ لینا. ہاں جی جی. سر آپ یوٹیوب پہ لیکچرز نہیں اپلوڈ کر رہے؟ یوٹیوب پہ جی وہ ایک دو جی سر، لیکچر آپ کے لاسٹ ایک دو مس ہو گئے ہیں. لیکچرز آئی گیس نہیں ہیں. ہاں وہ مس ہو گئے ہیں، میں وہ کر دیتا ہوں اپلوڈ، آج ہی کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے. جی ٹھیک. اچھا، اس کے بعد یہ آج ہمارا ہے ٹاپک آف ڈسکشن از فنڈامنٹل رائٹس. اس کو ہم نے جو بل آف رائٹس ہے وہ ہم بیفور لاک ڈاؤن ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لائک فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف پریس اینڈ فریڈم ٹو کیپ آرمز ایٹسیٹرا. تو آج ہم یہ پڑھیں گے فنڈامنٹل رائٹس. میں ابھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں نوٹس.
First of all, the importance and meaning of fundamental rights. Rights are the basis of a state and they alone provide a moral form. Fundamental rights are natural because it is believed they help human beings to develop their moral and spiritual aspects of life. Generally, these rights are embodied in the Constitution. It means that these rights of citizens cannot be transgressed. The government cannot act arbitrarily while dealing with its citizens, nor these rights can be taken by the government at its will. They restrain the legislature from legislation in a way that limits the freedoms granted to the individuals. The courts safeguard these rights. It should be remembered that these rights are natural and essential, but they are not absolute. These rights are subject to national security and social welfare. The individual uh, has a right to develop his personality, but not at cost of society, because the same rights are enjoyed by others as well. The individual is under an obligation to respect the rights of others also, then alone they have any meaning. फंडामेंटल राइट्स जैसे हमने पहले भी कुछ डिस्कस किए हैं. अब जो है हमें इसका जो इसकी इम्पोर्टेंस और इसका मीनिंग और इसकी जो है बेस क्या है. तो किसी भी अकॉर्डिंग टू दी ऑथर राइट्स जो है provided to the citizens or individuals in any society or country uh, are basis of यानी कह लें बेसिस ऑफ अ स्टेट. स्टेट की जो बेस है वो राइट्स के ऊपर ही रखी जाती है या कह लें डेवलप की जाती है. जो इंडिविजुअल्स को राइट्स दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोटेक्ट किए जाते हैं. अब आप ये फिर ऑथर ये भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर नेचुरल, दे कैन नॉट बी ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट्स. यानी गवर्नमेंट्स जो है वो ये नहीं कह सकती कि जी हम आपको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं. ये नहीं है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ऑन अर्थ, उनके जितने जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. तो नेचर ने आपको क्या राइट दिया है? पहला आपका राइट है फ्रीडम ऑफ लाइफ, कि आपकी जो लाइफ है इसकी आपको आज़ादी होनी चाहिए या इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि आपकी लाइफ कोई भी बंदा या कोई गवर्नमेंट जो है आपकी जान नहीं ले सकते अनलेस यानी कि विद अ ड्यू प्रोसेस लॉ जो. अच्छा, तो उसके बाद है फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी यानी आज़ादी. और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. ये सारे जो राइट्स हैं दे आर ग्रांटेड बाय नेचर टू दी ह्यूमंस ऑन अर्थ. तो गवर्नमेंट्स जो है गवर्नमेंट कैन नॉट curtail these fundamental rights provided by nature to humans. किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट जो इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ग्रांट किए गए हैं बाय द नेचर, वो गवर्नमेंट्स उनको कर्टेल नहीं कर सकती, उनको उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकती या उनको उनके जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन नहीं हो सकती बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्रीज ऑन अर्थ. तो
तो फिर जनरली जो है किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर ये फंडामेंटल राइट्स जो है प्रोवाइडेड एंड ग्रांटेड बाय नेचर है, दे आर इम्बॉडेड यानी दे आर इनकॉर्पोरेटेड या कह लें कि दे आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑन अर्थ। और जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी ये राइट डाउन कर दिए गए हैं। अब कुछ मुल्क जो है उनके कवानीन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अंदर जो वो रिटर्न नहीं है लेकिन उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है ये जब डील करेगी विद दी सॉरी उससे पहले ये है कि इंसानों के जो मोरल जो है अखलाक और उनके जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उनको डेवलप करने के लिए भी ये जो राइट्स प्रोवाइड किए हैं या ग्रांट किए हैं नेचर ने, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट्स जो है व्हेन दे डील विद दी सिटीजन्स या ह्यूमंस इन देयर कंट्रीज, तो वो उन सिटीजन की अपने सिटीजन के जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेचर उनकी वायलेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अब नेचर ने ह्यूमंस जो है उनको राइट ये दिया है कि दे कैन एक्सरसाइज द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। अपनी मर्जी का आप जो है ह्यूमंस मजहब जो है उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकती कि जी आप ये मजहब इख्तियार करें या फलां मजहब इख्तियार करें, इसको छोड़ दें। तो जबरदस्ती गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती इन डीलिंग विद दी सिटीजन रिगार्डिंग देयर राइट्स। गवर्नमेंट और इन राइट्स को गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से वापस भी नहीं ले सकती। तो यहाँ तक है कि ये जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द नेचर, इन्होंने स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो ह्यूमंस को राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय द नेचर, आप उन राइट्स को खत्म कर दें या उनके ऊपर उनको लिमिट कर दें। ऐसा कोई लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता, ये मुल्कों के अंदर है। तो ये यूएसए के अंदर जो आपने लेजिस्लेटिव ब्रांच पढ़ा है तो उसके अंदर एक अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आगे जाके भी आएगी कि आपने पढ़ा है कि लेजिस्लेचर कैन नॉट पास एनी एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ। तो वो क्या है वो सारा आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कोई बंदा जो है उसने जिस वक्त कोई एक्ट कमिट किया उस वक्त अगर वो क्राइम नहीं है तो बाद में लेजिस्लेचर कोई कानून बना के उसको क्राइम डिक्लेयर करके उसको पनिश नहीं कर सकता बंदे को। ये भी ह्यूमन के राइट्स में आता है। देखें जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर लिमिट्स लग गई हैं कि आप इंसानों के सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन या उनको लिमिट करने के लिए आप कोई कानून साजी या लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। तो ये फिर सारे जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेचर and incorporated in the constitutions of the countries on earth are involved, they are safeguarded by the courts of law. If these rights are provided by the nature and incorporated are written in the constitution of any country are violated by the governments, the citizens can have recourse to the courts of law to have
रेमेडी फ्रॉम दैट कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, उसके बाद ये है कि it should be remembered that these rights are natural and essential but they are not absolute। तो अब ये जैसे हमने अभी तक डिस्कस किया है तो इसका तो अंडरस्टैंड हम यही करते हैं कि इंसानों को जो राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं तो उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो आप जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो राइट है प्रोवाइडेड बाय द नेचर, तो फिर जो मज़ाहिब हैं या रिलीजन्स हैं डिफरेंट किस्म के, तो इसका मतलब है कि वो फिर जो मर्जी वो करते रहे, ऐसा भी नहीं है। तो उन्होंने जब इंसानों ने अपने जो राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं बाय द नेचर, उनको उनको प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेचर, उनको प्रोटेक्ट करने उनको वो एक्सरसाइज जो है वो इस तरह नहीं करेंगे कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करी जाए उस मजहब के अंदर। जैसे बिफोर 1857 जब अंग्रेज जो है ब्रिटेन या कहने की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हुकूमत सब कॉन्टिनेंट के अंदर एस्टेब्लिश की, उस वक्त हिंदुस्तान में इंडिया के अंदर एक रिलीजियस हिंदू मजहब के अंदर एक प्रैक्टिस थी कि सत्ती करके सत्ती की प्रैक्टिस। वो क्या थी कि अगर एक बंदा मर जाता था तो उसके साथ उसकी जो वाइफ है उसको भी लकड़ियों के ऊपर जब डेड बॉडी को डाला जाता था तो उसकी वाइफ बेशक वो यंग है और 18 ईयर्स की 20 ईयर्स की है जितनी भी है और उसके आगे कितनी लाइफ पड़ी होती थी, तो उसको भी वो जो लकड़ियां जलाई जाती थी डेड बॉडी के लिए, उस जिंदा औरत को उसके ऊपर जबरदस्ती बिठाया जाता था और आसपास जो लोग खड़े होके डंडे सोटे लेके लेके खड़े हो जाते थे। अगर वो उतरने की कोशिश करती तो उसको मार के उसके ऊपर जबरदस्ती जिंदा औरत को उस मुर्दे के साथ जला दिया जाता। तो फिर क्या आप ये कहेंगे कि क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो जो मर्जी करें? नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ये एक सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट प्रैक्टिस थी। यानी इससे जो सोसाइटी के अंदर जो है बिगाड़ पैदा होता है, सोशल वेलफेयर जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो इसको फिर कानून बना के ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या इंडिया के अंदर इसको बैन कर दिया। उसके बाद यही जो राइट्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं, दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब जितने राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं बाय नेचर and they are also incorporated in constitution of a particular country, तो उनको जो है उनके ऊपर जो दे आर सब्जेक्ट टू, दे कैन बी एक्सरसाइज बट सब्जेक्ट टू सोशल वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। सोशल वेलफेयर की एक आपको मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। अब आगे आएगी बात नेशनल सिक्योरिटी। अब अगर आप देखें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपके पास फ्रीडम है तो ये राइट है आपको प्रोवाइड किया गया है बाय नेचर एंड आल्सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड और रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब है कि फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी भी जो एक बाइज्जत बंदा है उसको खड़े होकर उसको गालियां दे लें और उसको सरेआम जलील कर दें, तो आप फिर बाद में कहें कि जी मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरा तो ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है और ये मुझे राइट नेचर ने दिया है।
तो मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा फ्रीली। नहीं, आपके ऊपर फिर एक जो लिमिटेशन जो है, रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि ये जो राइट आपको दिया गया है, ये दिस इज सब्जेक्ट टू सोशल वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो आप अगर किसी को सरेआम गालियां देंगे, उसकी इज्जत उछालेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मेरे पास है, तो उससे सोसाइटी के अंदर डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर पैदा होगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। यानी अगर आप किसी को गालियां देंगे नाजायज, हो सकता है वो गुस्से में आके आपको फायर मार दे या फिर आपको कोई फिजिकल जो है आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तो उससे फिर क्या होगा, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी फिजिकल, और उससे एक सोसाइटी के अंदर जो है एक बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप करें, लेकिन दूसरों के राइट्स का भी आपने ख्याल करना है कि आपके पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो अगले बंदे के पास भी राइट है कि उसकी जो इज्जत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो आप उसकी इज्जत नहीं उछाल सकते अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट जो है एक्सरसाइज करते हुए। थर्ड एग्जांपल इसमें आ गई है नेशनल सिक्योरिटी, कि दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी एक राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के अंदर प्रोवाइड किया गया है अमेंडमेंट नंबर 1 में। तो दैट राइट इज सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब टीवी के एंकर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो सहाफ़ी हजरात हैं वो कहें कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो हम जो मर्जी लिखें और जो मर्जी टीवी पे आके बोलें, ऐसा नहीं। तो उनको, उनका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है दैट इज सब्जेक्ट टू सोशल वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। वो कैसे, आप ये देखें, इंडिया के अंदर एक अटैक हुआ, उसके अंदर एक अजमल कसाब नाम का बंदा, उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये इसने अटैक किया, और उसके इल्ज़ाम, वो इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान पे लग गया कि ये पाकिस्तानी सिटीजन। तो वो उसका एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग जो थी वो नागजीर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि हमारे ही पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और एक वो न्यूज़ चैनल के साथ अटैच। तो उन्होंने फौरी तौर पे कैमरा मैन लिया और माइक लिया और सियालकोट के किसी एक गांव में जहाँ पे खड़े होके एक बार जो है उसकी वीडियो बना के, ये जी ये है अजमल कसाब का घर, ये पाकिस्तानी है, ये इसका घर है, ये है अपना है। और वो उन्होंने अपना जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट को एक्सरसाइज किया, लेकिन अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो उस वक्त फिर जो है पाकिस्तान को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कह लें कि मॉरली तो उसकी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई पाकिस्तान को। तो इंडिया ने उसका प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखें जी हमारा जो इल्ज़ाम था, हमारा एक एलिगेशन था कि पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो इनके अपने सहाफ़ी जो है ये कह रहे हैं कि ही इज़ पाकिस्तानी सिटीजन। तो वो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस उन्होंने एक्सरसाइज जरूर किया, लेकिन अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो हो सकता था कि उस वक्त जंग लग जाती और दोनों मुल्कों के एटॉमिक पावर्स हैं, तो एक एटमी जंग भी लग सकती। फिर क्या होना था, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मर जाने थे सिर्फ एक बंदे ने के फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो राइट एक्सरसाइज करने की वजह से। तो ये बात करने का मतलब यह है कि दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर, या कह लें कि दीज राइट्स आर नेचुरल एंड एसेंशियल बट आर नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर सर्टेन लिमिटेशन है
اور وہ لمیٹیشن جو ہے وہ قوانین ملک کے اندر بنا کے بھی لگائی جاتی ہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی انسانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا جو رائٹ ہے، تو میں اپنی اگر اپنے رائٹس ایکسرسائز کر رہا ہوں تو اس سے سوشل ڈس آرڈر تو نہیں کریٹ ہو رہا، اس وجہ سے میری وجہ سے کسی کی جان تو نہیں جا رہی، میری وجہ سے کسی کی تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور میری وجہ سے کسی کے مذہبی جذبات جو ہیں وہ تو نہیں مجروح ہو رہے کہ میں تو اپنا فریڈم آف ریلیجن ایکسرسائز کرتے کرتے کسی اور کے ریلیجن کے اوپر بات کر جاؤں، اور میں اپنا فریڈم آف جو ہے اسپیچ کو ایکسرسائز کرتے کسی کی دل آزاری کر دوں، اس کو گالیاں دے کے، اس کی عزت کو اچھال کے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو یہ پھر آپ کو اور مجھے اور جتنے بھی ہیومن ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وی ایز ہیومن بینگس کین ایکسرسائز آور rights provided by nature, but not at the stake of or at the cost of society or others, because others also have uh, same rights. تو ہر جو انڈیویجول ہے وہ انڈر این obligation ہے کہ the individual is under an obligation to respect the rights of others also. اگر آپ نے اپنے رائٹس جو ہیں ان کے انٹائٹلڈ ہیں اور ان کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں بائی لا اینڈ بائی نیچرل لا، بٹ یو آر انڈر obligation ٹو ریسپیکٹ دی رائٹس آف ادر آلسو. یہ تو ہے میننگ اینڈ اس کی امپورٹینس. اس کے بعد fundamental rights are embodied in the constitution. If we study the constitutions of various countries, we will find that fundamental rights are سوری جو اب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے تو پوچھ لیں. کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کویسچن نہیں ہے آپ کو؟ اچھا جی. Fundamental rights are embodied in the Constitution. If we study the constitutions of various countries, we will find that fundamental rights are generally mentioned in the constitutions. There are constitutions of Germany, Ireland, Japan, Pakistan, where these rights find a place. There are other countries like Canada, Australia, South Africa, etc., where these rights have not been constitutionally provided, but their too citizens enjoy certain freedoms, and tendency is to incorporate them in the Constitution. Even in England, Magna Carta provides the basis of rights of citizens. In the UN Charter too, we find a declaration of human rights. Fundamental rights form a party of any government system because they alone define the relationship between the government and
people. یار ابھی آپ اینڈ پہ آپ کلاس کو جوائن کر رہے ہیں, 10 منٹ رہتے ہیں, یہ آپ اپلوڈ بھی کر, بعد میں پھر آپ نے کہہ دینا کہ میری اٹینڈنس کا ایشو ہے. In the original Constitution of USA as adopted by Philadelphia Congress, there was no mention of these rights. Actually, the founding fathers were not unanimous on this point. Jefferson tried to get them included in the Constitution because, in his opinion, a bit of rights is what the people are entitled to against every government on earth, and what no just government should refuse. Hamilton too supported the embodiment of these rights but suggested that they are merely ideals and have no practical utility. As a matter of fact, the founding fathers had agreed to include them. This explains the fact that, despite rigidity of Constitution, first 10 amendments concerning rights of the people would become part of the Constitution within 2 years of its inauguration. These collectively are called Bill of Rights. تو ہم اگر مختلف ملکوں کے جو کانسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو اگر اسٹڈی کریں تو وہاں پہ یار میں نے ابھی نا کلاس کے نا اسکرین شاٹ لے لیے ہیں, اب جو مرضی آ کے کلاس کو جو جوائن کر رہے ہیں بچے, پھر بعد میں پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ایبسینٹ لگ گئی. دس از ناٹ گڈ پریکٹس. اچھا, ایون ہم دوسرے ملکوں کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں ان کو اگر پڑھیں اسٹڈی کریں تو ہمیں جنرلی ہمیں ان کانسٹیٹیوشن کے اندر ملتے ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس. تو جرمنی کا کانسٹیٹیوشن ہے, آئرلینڈ, جاپان, پاکستان, ان کے اندر رائٹس جو ہیں وہ مینشنڈ ہے. اور اس کے بعد کنٹریز ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, تو وہاں جو ہے رائٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں ہے. لیکن وہاں پہ سارے جو سٹیزن ہیں جن ملکوں میں کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن نہیں ہے وہ بھی یہ رائٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اور یو کے جو انگلینڈ ہے وہاں پہ میگنا کارٹا وہ پرووائڈ کرتا ہے بیسس آف دی رائٹس آف سٹیزن, اور یو این کا جو چارٹر ہے وہ بھی ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں دے فارم اے پارٹی اگینسٹ اے گورنمنٹ, یعنی جو گورنمنٹ اور سٹیزنز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے ہی یہی کہ جو سٹیزنز کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے لیے انٹائٹلڈ ہے, وہ ان کو فریلی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے اگر ان کی رسپیکٹ کرے گی تو گڈ ریلیشن شپ ہے, اگر وائلیشن کرے گی تو بیڈ ریلیشن شپ ہے. تو گورنمنٹس جو ہیں انڈر اوبلیگیشن ہے کہ ان کے جو سٹیزن کے رائٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, ان کی رسپیکٹ کی جائے. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن یو ایس اے کا ہے وہ فلاڈیلفیا کی کانگریس کے اندر جو اس کو فارمولیٹ کیا گیا, انکارپوریٹ کیا گیا, تو اس کے اندر کسی قسم کا رائٹ جو ہے وہ مینشن نہیں تھا. لیکن جیفرسن اور ہیملٹن یہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ رائٹس جو ہیں سٹیزنز کے, انڈیویجولز کے, they should have been mentioned in the constitution. تو جیفرسن کے اکارڈنگ کہ رائٹس is what the people are entitled to against every government on earth and what no just government should refuse. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹس جو ہیں they are provided by nature and people are entitled
to these rights against every government on earth, and governments should not refuse these rights provided by nature. तो हैमिल्टन ने भी यही कहा कि इन जो राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट डाउन किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए, लेकिन वो उसको इंक्लूड नहीं कर सके। फिर उसके बाद जो ये हुआ कि डिस्पाइट द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट 10 amendments concerning rights of the people could become part of the constitution within 2 years of its inauguration. These collectively are called Bill of Rights. यानी जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी विश तो थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम राइट डाउन कर दें, इनकॉर्पोरेट कर दें, बट दे कुड नॉट। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है दैट इज वेरी रिजिड। तो डिस्पाइट द रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, these rights were incorporated in the constitution within 2 years of the formation of constitution in the form of first 10 amendments. These are also called Bill of Rights. यानी 2 साल के अंदर ही जब कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके 2 साल के अंदर ही जो इसके अंदर पहली जो 10 अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, उसके जरिए राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट डाउन कर दिए गए। ऑल्दो द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी टफ एंड वेरी रिजिड। तो जैसे कि अमेंडमेंट के लिए आपको पता है कि 3/4 स्टेट्स ऑफ यूएसए जो हैं उनको पहले वो उसको करें, क्या पास करें प्रपोजल को, उसके बाद कांग्रेस के पास जाएगा तो उसके दोनों हाउसेज जो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करें। तो एक अमेंडमेंट के लिए 7 ईयर, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स तक भी लग जाते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए थ्रू अमेंडमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इतना टफ और रिजिड प्रोसीजर होने के बावजूद सिर्फ 2 साल के अंदर ये पहली 10 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई, जिनको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। आज हमारा टॉपिक क्लोज हो गया है, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? Any question? Any questions? Any questions?